Hello student, this is Hari from English classes and today I'm going to teach about second structure that will be present position. As we can see on this board that I have written here present positions. Okay, so this structure will be very important for each and everyone. So please let's start to discuss here that is the present position. Got it? See. First of all, I will tell the five formation of present position: positive, negative, interrogative, interrogative, negative, and WH word. Okay, so let's begin to start one by one. So first of all, we'll discuss the structure of present position. Okay, what will be the structure of present position, and in actually, what is the mean of present position? Present means when action or incident which is happening in a present, that is called present. Okay, but we just have to talk about also position. So we should try to understand that what is the meaning of position. Okay, position shows two things: one is relation and second is position. It shows two things, position and relation. पोजीशन मतलब होता क्या है, दैट इज ऑनर. ओके, मतलब एक मालिकाना हक, ये रिलेशन शो करता है, एक ऑनर शो करता है. रिलेशन मीन्स व्हेन टू पर्सन विल जस्ट कनेक्ट each other. Okay, and when somebody or something will be connected together, in that conditions we can say that there should be a relationship. But on the other hand we can also talk about honor. Honor mean मालिकाना हक. सपोज मेरे पास एक गाड़ी है तो उस गाड़ी का हक किसका है, मेरा है. ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि वहां पे मालिकाना हक. तो इन द सेकेंड फेज आई विल टॉक द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट पोजीशन. ओके, तो प्रेजेंट पोजीशन का स्ट्रक्चर होता है, first of all we will use subject, then supporting verb. In supporting verb we use have oblique has. Okay, means have and has we can use here. Okay, then we apply, that is a noun. Okay, so according to this way we can use this structure for the present position, that is the present position. Okay, so see, first of all I will tell positive structure, then I will tell negative structure, then I will tell interrogative structure, then I will tell interrogative negative and structure, and finally I will tell you all that is the WH word, because WH word is that of sentences which are asked to questions, that is called WH word. Okay, actually with this sentence, okay, we can use also some of questions word with the sentence. Okay, in that conditions we can apply this is the sentence. So let's begin to start one by one. Okay, see, so first of all we will see positive. Okay, positive. So what is a positive structure? Subject plus have oblique has plus ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर. ठीक है, और ये आपका जो है ये आपका सपोर्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो हिंदी के अंत में होता है वो के पास है. ठीक है, और एक होता है को है, और एक होता है रखता है. मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि वेयर वी गेट Hindi sentence at the last of a sentence like this, we can understand that is the structure of present position, and in that conditions we can apply subject plus have oblique has plus object. Just like मेरे पास गाड़ी है, मुझे गाड़ी है, मैं गाड़ी रखता हूँ. I have spoken three sentences. Okay, and these three sentences are equal. ये तीनों सेंटेंस इक्वल है. इसलिए इक्वल है क्योंकि तीनों के अंत में के पास है, को है, रखता है से अंत हो रहा है. ठीक है, अगर आप जानने का प्रयास करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये प्रेजेंट में है. अब बात आ गई कि के पास को रखता है, तो अगर इस तरह का हिंदी में आता है तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो प्रेजेंट पोजीशन होगा. तो इस तरीके से आप अपने स्पीकिंग स्किल में आप इसे यूज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस को प्रोनाउंस कर सकते हैं और आप स्पीक कर सकते हैं. तो आई होप इट विल definitely be very important for you all. So let's see. Now we will see the example of this structure. Okay, अभी हमने देखा structure. Okay, and also I'm gonna to tell about where can we use have and where can we use has. Okay, हम have और has का इस्तेमाल किस जगह पे करेंगे हम वो भी देखेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि हैव कहाँ पे लगाएंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप हैव लगाइए. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाइए. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आई रहे, वी रहे,
यू रहे, दे रहे, या फिर किसी भी प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, नेम या कोई भी प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप उसके साथ हैज का इस्तेमाल करें, राइट। तो हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उसे एक घर है, उसे एक घर है, ठीक है। तो उसे एक घर है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही है, ठीक है। आप देखिए कि ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी मस्ट अप्लाई दिस सपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है जो मैं यहाँ लिखा हूँ, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज। अब देखिए कि उसके पास क्या, एक घर है, ठीक है, एक घर, ही हैज अ हाउस। मैंने पहले वाली स्ट्रक्चर में बताया था एसएसपीपी, एसएसपीपी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यानी कि ये वाले रूल्स अगर आपको, ये वाले रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका सेंटेंस सही होगा, आप सही बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसे फॉलो करके आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं। ही हैज अ हाउस, ओके। नाउ सी, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास धन है। तो उन लोगों के पास धन है, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, दे, ठीक है। अब दे है आपका सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार से हम सपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे हैव या हैज। तो दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप लगा देंगे हैव, तो दे हैव। उसके बाद हम यूज करेंगे कि उन लोगों के पास धन है, तो क्या है भाई, धन है, ठीक है। तो धन का इंग्लिश क्या होता है, वेल्थ होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें मनी भी यूज कर सकते हैं। So it depend upon on you that which word do you want to use in a sentence. Okay, now see next. मुझे समस्या है, ओके, मुझे समस्या है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई, और यहाँ पे क्या होगा, हैव, और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम। तो आई हैव अ प्रॉब्लम, ओके। अब बात करते हैं कि सर आप यहाँ पे पूछेंगे कि SSPP, okay, SSPP, if the subject is singular verb is also singular, if the subject is plural then verb must be in plural, okay। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव आपका प्लूरल है, ये ऐसा क्यों, ये तो SSPP नहीं मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो मैं यूज किया हूँ एक एक्सेप्शन है जिसको हम अपवाद कहते हैं, ठीक है। Now we will see the negative structure. Already I have just told you that for making a negative sentence, we must take you one thing that not can be used after supporting verb. If you use not or no after supporting verb, the sentence, okay, will be changed into your negative sentence. Okay, so these things we just have to take here. Okay, now see, that is the negative structure. What will be the negative structure and how will we just make, and what should be the fundamental of negative structure of present position as I have just told you. Okay, see, negative structure. So guys, we just take here negative structure. First of all, we shall use subject have slash has, then not, then we shall use object. This way we can use this structure for the present position. Okay, that will be your negative sentence. Now we can use in another, okay, that is the subject plus do oblique does plus not plus have plus object. Okay, this way. I have written two sentences. I have written two structure for the present position, that is a negative, right? So for the negative, I have just given you two structures, that is subject plus have oblique has plus not plus object. Subject plus do oblique does plus not plus have plus object. See, that is a ordain. Okay, that is a old grammar. That is a old grammar, and this is a modern grammar. According to modern grammar, if you want to speak English, then we just must speak like this. Okay, we must speak like this: subject plus do oblique does plus not plus have plus subject. Suppose if you use this structure, that will be very efficient. That will be very efficient for each and every one. Okay, suppose, and if you use this thing, then definitely that will be also right. Okay, but the viewers and the listener can more attentive, okay, this structure and these sentences. Okay, so
at least we should try to use this structure. That will be good for each and everyone, okay, because this is very convenient. Okay, so let's start to just learn according to example. We can see the negative examples. Okay, तो how will we use? Simply हम इसको यूज करके चलेंगे. आप इसको भी, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो नोट लगाना होगा, ठीक है, जो है इसके बाद आप लगाएंगे. आप वहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है. मैंने एक चैप्टर में बताया था, एडवर्ब वाले चैप्टर में, कि नॉट और नो का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है. नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और नो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो एडवर्ब का सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब के चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं. ओके, सी, अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इसका क्या होगा? यू डोंट हैव मनी. यू डोंट हैव मनी. उसके पास घर नहीं है. ओके, ही डजंट हैव हाउस. राइट, उसके पास बीमारी नहीं है. ओके, दे don't have disease. Right, they don't have disease. So according to this way we can make the sentences for the negative structure. Okay, that is the present position. Now we will go and now we will move in interrogative sentence, interrogative structure. What will be the interrogative structure for the present position? So see, so first of all, if you have just not written so far, so please just take the screenshot or you can write. Okay, so I'm just giving you the space to see here. Now we will just move in, and now we will just move for the interrogative structure for present position. Then we will go for final, that is the W aspect. Okay, so according to this way we shall learn this structure and we can implement in our speaking skills, so that we can speak more and more, and our language will be very precious and our language will be very smart and modern. Okay, so let's begin to next structure, that is the interrogative structure. Okay guys, so see, I hope that means you will have you will all have written this structure. Now we go for next structure, that is the interrogative. Okay, see, so now we are just talking about interrogative structure, right? Interrogative structure. So see guys, have oblique has plus subject plus no or not plus object plus question mark. Okay, we can use another structure, that is a do oblique does. Okay, do oblique does plus subject plus have plus object plus question mark. So this way we can use, okay, for the present position. Okay, that is the interrogative structure. So see, अगर आप बात करेंगे कि सर डू का इस्तेमाल कहाँ होगा, डस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपली आपको ध्यान देना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाइए और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डस लगाइए. ठीक है, जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और किसी भी प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके पास आप डू लगाएं. अगर आपका रहा ही, सी, इट, नेम या कोई भी प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ लगाएंगे आप डज. ठीक है, अब देखिए कि अगर आप पूछेंगे कि सर वहां पे आप लगाए थे हैव और हैज और यहाँ पे सिंपली आप हैव लगा रहे, तो ऐसा क्या कारण, मैं इसका आंसर अभी देता हूँ. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, क्या आपके पास कलम है, तो क्या आपके पास कलम है, डू यू हैव अ पेन, राइट, डू यू हैव अ पेन. हम ऑलरेडी डू का यूज कर चुके हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ पे हैज का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग होने वाली. इसलिए रॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डू और डज का यूज कर चुका है. अब आने वाला जो मेरा वर्ब होगा वो हम सेम सपोर्टिंग वर्ब को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, बस इसका कारण यही है. तो डू यू हैव अ पेन, ठीक है, तो इस प्रकार से बोलेंगे कि आपके पास कलम है, डू यू हैव अ पेन. ओके, सी नेक्स्ट, क्या उसके पास पैसे हैं, does he have money. ओके, क्या राधा के पास कलम है या क्या राधा के पास चेयर है. does राधा have okay chair. does राधा have chair. क्या मेरे पास नए शर्ट हैं, क्या मेरे पास नए शर्ट हैं. ओके, do I have
डू आई हैव न्यू शर्ट। अगर आप इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐसे भी बना सकते हैं, हैव आई न्यू शर्ट। ओके, तो आप इसको इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरा जो सेंटेंसेस रहा, ये मेरा जो एग्जांपल रहा, वो आपका इंट्रोगेटिव का था। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूव इन, दैट इज द फाइनल, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट WH word structures। ओके, सी स्टूडेंट्स, WH वर्ड। ओके, तो ये WH वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर और ये मेरे स्ट्रक्चर जो होगा ये हमें हेल्प करेगा किसी से क्वेश्चंस पूछने के लिए। सपोज वी आर जस्ट टॉकिंग टू समबडी एल्स, वी आर जस्ट गोइंग टू डू कन्वर्सेशंस। So for doing conversation, we just need to ask the questions to our opponent, okay, who will speak to me. So it is a definitely, and it will be mandatory to just ask the questions. That is why we just need that time the WH word concept. Okay, so if we have the knowledge and if we have the whole concept of WH word, we can apply and we can ask the questions in that time. And that time we just don't feel very embarrassment and we don't feel very scared to talk. Okay, so in that conditions we can talk and we can win and we can conquer. So for that's why I'm just going to teach about WH word structure for the present position. So see, सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड, जो मैं पहले ही लिस्ट दे दी हूँ कि WH वर्ड का कौन कौन सा लिस्ट होगा, उसका एक चैप्टर में बनाया हूँ, उसका एक वीडियो बनाया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो WH वर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे डू और डज, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं हैव, उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो इस तरीके से हम WH वर्ड का स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं और इस पे कई सारे सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो मैं पहले ही बताया था क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है। तो ये दो सेंटेंसेस को मैंने बोला। अगर आपका स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में अगर आपका क्या वर्ड जुड़ा हुआ हो तो वह आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ना कि वो आपका WH वर्ड होगा, ना कि वो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। तो देखिए, तुम्हारे पास क्या है, अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश में तुम्हारे पास क्या है, तो सबसे पहले बात आती है कि क्या है, क्या। तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। अब तुम्हारे पास क्या है, तो डू और डज, ठीक है। तो व्हाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है भाई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे पास क्या है। या राधा के पास कितने कलम हैं, तो कितने को हम काउंट कर सकते हैं, कलम को काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी लगाइए। कलम को काउंट नहीं कर सकते तो आप हाउ मच लगाइए, ठीक है। तो हाउ मेनी कैन बी यूज फॉर द काउंटेबल नंबर एंड हाउ मच कैन बी यूज फॉर द अनकाउंटेबल नंबर। ओके, सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लगाऊंगा हाउ मैनी, उसके बाद लगाएंगे हाउ मैनी। अब यहाँ डू या डज, तो मैं बता रहा हूं कि राम के पास कितने कलम है, तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसको काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ हाउ मैनी पेन, हाउ मैनी पेन्स डज राम, ओके, राम हैव। तो यहाँ पे जो मैं डज का इस्तेमाल किया हूँ वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया हूँ, ना कि हम इसको चेक नहीं करेंगे। हाउ मेनी पेन्स, ये देखो हाउ मेनी के बाद जस्ट आपका पेन्स लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ विच हो गया, आपका हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, और एक और है हुज हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इसके साथ आपको नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, हाउ मेनी पेन्स डज राम हैव। So students, we have seen here the present positions in clearly in proper way, and I have just given whole concept and whole knowledge of the present position. I hope you have understood these examples and this structure, and definitely you will just implement in your speaking skills. It will very factful and it will very important for you all. So please subscribe my channel, share this video to more and more people, and if you have just not subscribed it, please subscribe it, and please don't forget to press the bell icon so that you will get more update videos. So thank you.